Namaste student. Today we are going to see a new chapter, that is probability. It's quite small as compared to class 10 syllabus. So in this chapter you have classical definition probability. In class 9 you have seen experimental probability, that is your empirical probability. In that case your outcomes are not equally likely. That means if you'll do one experiment and your friend will do another experiment, same experiment in another way or same way, then the result is not compulsory that both will get same. Like if I'll ask you to toss a coin 50 times, so you may get some result. Think that you have got 20 times tails and 30 times head. If I take that same coin and if I'll toss 50 times, will I get the same outcomes the way you have got? No. So here, this is totally based on your experimental. Whatever result you will get, that means number of tries in which an event happen. That if I'll ask for you, what is the probability when you throw a coin 51 times? Which when you will throw at the time of 51, what will be the probability? So according to your observation, what you have performed, you will use that one. That means if you take 30 times 8, that means 30 by 50, that will be your result 3 by 5. And if I get 20 times 8, then my result will be 2 by 5. You can see that your result and my result vary. It's not same. So that is experimental probability. We don't have this one. It was there in class 9. Now we have theoretical probability. That is a classical probability. Sometimes we call classical also. It is totally based on your formula and theory. Based on your theory we use, and here your outcomes, we assume that it should be equally likely outcomes. So what does it mean, equally likely outcomes? And what is the meaning of outcome? Let's discuss about the terms. Here 4 terms we have. Now you will say that so you have not told about the definition of probability. It's a measurement of uncertainty using the number. Okay. And your number lie between 0 to 1. And you can convert the probability into percentage. So percentage range is 0 to 100 and probability range is 0 to 1. It should not be more than 1 and should not be less than 0. If we'll get probability of any event equals to 0, then that is impossible event. And if we get probability of any event equals to 1, that is sure event. Okay. Now we'll see about your what we call event, and before that we'll see outcomes. What is outcome? You will take a coin and you will throw, so you will get some result. That result is your outcome here. And remember, whatever experiment we do here, that is a random experiment. Now you may say that, so is there any other kind of experiment? Yes, that is deterministic experiment which you do in physics or biolab, because there you have predefined the result. In your book or lab book it is written that if you do this procedure, if you follow this procedure with this chemical or any equipment, you will get that result, and if you do, we will get the same result. But if you take a coin and if you throw it, here 2 results is there. You know the result that you will get the head and or tail, but you are not sure about that which result will going to come. So here also we know the result, but here result is not only 1, here result more than 1. So you cannot guess directly. That's why here the word uncertainty of what occurrence of any event is there. So in deterministics means it is fixed. But for random, it is not fixed. Result is not fixed. Same experiment if I do, I may get another, you may get another. Same experiment. So that is your random experiment.
So whatever result you get in the experiment, random experiment, that we call outcome, and the set of outcomes we call event. Event may be a single outcome too, remember. So next is your trial. Trial means what? If you do one experiment, that experiment we call a trial. Like if I toss a coin one time, that is the first trial. If I toss another time, that is second trial, third trial, fourth trial, fifth trial, and so on like that. And fourth term is equally likely outcomes. Like there should not be any partiality. It should be unbiased. Bias should not be there. Like if I'll take a coin and I'll do some modification on the coin, and if I'll toss, I'll get always head. No, that is not possible in your probability. You cannot do like that. If you do, then we cannot keep that one in a classical definition. Okay, so remember this one. And if you take not only your coin, we all only bounded us with the coin only. You can see your what we call taas ke patte. That means what? Deck of playing cards. So अगर आप पूछेंगे कि सर ये प्रोबेबिलिटी आया कहाँ, तो ये ताश के पत्ते के ही अंदर से आया हुआ है. तो मैथमेटिशियन थे, कोई सोचे कि अरे ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, चलो किसी के पास लेके चलते हैं. तो वो आप ढूंढिएगा कौन है, कौन मैथमेटिशियन है. उन्होंने उनको देखा, बारीकी से देखा कि यस, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया ये सही है. अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमें जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगा. द गेटिंग द विनिंग चांसेस इज मैक्सिमम. सो उन्होंने इस कंसेप्ट को यूज़ करते एक नया सब्जेक्ट को लेके आया, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. आज इस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए बहुत सारे कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी इसमें जुड़े हुए हैं. ना हायर क्लासेस में आपको दिखेंगे. यू कैन सी दैट statistics and probability become together and give one wonderful result which helps maximum company and the factories. What they do with this, they collect the data and do experiment on it. They use experimental data and they use statistics in it, and they provide the product at a particular city or state, and they get benefit from there. सो प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपके सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत दूर तक है. अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत जगह पे दिखेंगे. तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे फिर आते हैं. तो हमारे टॉपिक में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, और इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसका मतलब अगर आपका प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा आ रहा है, 0 से ज़्यादा बोल रहे हैं, 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलत किया. प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से ज़्यादा, 0 बोल रहे हैं, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा. तो और 0 से कम नहीं आएगा, मतलब माइनस कभी नहीं आएंगे. ठीक है, बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1 से ज़्यादा नहीं आना. इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी अगर आप फ्रैक्शन में रखते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं होगा. ये बात को आपको ख्याल रखना है, और नेगेटिव नहीं होगा. और हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल से. चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल. जैसे मान लीजिए अगर हम 0.5 लेते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है. अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है. आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज में डालना है. फिर आप देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट 10 100 दैट इज 10 10 100 50%. 0.5 कन्वर्ट इनटू 50%. ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में बदल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में. अगर आपका परसेंटेज 0 to 100 लाई करता है तो, और भी ये बात कह चुके हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 हुआ उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कॉइन को या डाई को ले लेते हैं, डाइस. ठीक है, जो लूडो का गोटी होता है उसको ले लीजिए, उसको आप थ्रो कीजिए और आप पूछिए कि 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या 7 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा आने का
क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं अगर लूडो का गोटी को देखे होंगे तो उसमें से 6 से ज़्यादा नंबर नहीं है, तो जब आप थ्रो करेंगे तो 6 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक भी आउटकम ऐसे नहीं मिलेंगे जो 6 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा रिवर्स में घुमाते हैं, कहते हैं कि अगर डाई को थ्रो किया तो 6 से मतलब 7 से कम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली यह श्योर इवेंट हो जाएंगे, सर्टेन इवेंट, जिसको श्योर इवेंट का दूसरा नाम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है 7 से नीचे जितने नंबर्स है सब इसमें है 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट कहलाएगा और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1। अब बाकी जो भी है वो बीच में लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं और एक छोटा सा टर्म आपको दिखेगा, वो है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। सर ये क्या हमारे सिलेबस में है? ये तो फिलहाल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप देखे होंगे इस तरह का, मान लीजिए आपके पास स्क्वायर बॉक्स देता है और स्क्वायर बॉक्स में मिडिल में करके सर्कल दे देता है और आपसे पूछता है इफ आई थ्रो दिस चॉक, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई हिट दैट इन सर्कल एरिया। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो आपका टारगेट एरिया क्या है? डिजायर्ड एरिया दैट इज सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लगाएंगे और टोटल एरिया कितना दिया था आपको, क्योंकि उससे बाहर फेंकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल एरिया हो गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा ही टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आपको 3 टाइप्स दिख रहे हैं और एक टाइप्स है जो एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, दो हमारे सिलेबस से बहुत ही दूर तक है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस एकदम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लास 9 में ये देख चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है? ये वाला जो क्लास 10 है, जिसको हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जहाँ पे आउटकम्स इक्वली लाइकली होगा। इसका मतलब इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, हर आउटकम्स का आपका बराबर आपका क्या होगा? वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे ताश के पत्ते आप जब देखेंगे, देख सकते हैं हर तरफ आपके बराबर है। आप अगर आप बैक साइड से देखते हैं तो आपको गेस करना मुश्किल है ये कौन सा ताश का पत्ता है। लूडो का गोटी को अगर आप देखते हैं, थ्रो करते हैं, तो आपका हर तरफ बराबर इक्वली लाइकली आने का चांसेस है, आपको मालूम नहीं कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली होना है, ठीक है। और डिटर्मिनिस्टिक्स नहीं होना है, रैंडम होना है। अगर आपका रिजल्ट पहले से ही मालूम है कि यही आएगा, फेंकने से यही आएगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई चांसेस ही नहीं है। ये तो अनसर्टेनिटी का मेजर करता है। तो ख्याल रखना है, जहाँ पे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, एक से ज़्यादा रिजल्ट होंगे, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लाई करेगा और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन क्लास थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटकम्स को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, जैसे टॉसिंग अ पॉइंट, उसमें क्या क्या आउटकम्स आएंगे, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट ए टाइम, टॉसिंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम हमारे सिलेबस में, और फिर 1 डाई थ्रो करेंगे वो है, 2 डाइस थ्रो करेंगे वो है, और प्लेइंग कार्ड्स। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, इनको हम लोग देखेंगे। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हमें दिखेंगे थोड़ा सा लेवल का उसको। और हमारे सिलेबस में जस्ट आपके एलिमेंट्री इवेंट कंसेप्ट को ही लेके आया है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।